So graphics designing, that's our today's topic. And what is graphic designing? As we already spoke about this one earlier yesterday, that was the combination of color, font, and shape is what graphic designing. Okay, the color, font, and shape. These three, when combines, they give a shape to graphics, right? How we're gonna do that, and why is it so important? So there's no need to tell you why it's important, because everywhere, if you want to connect with people, you need to tell the story. And to tell the story, you have two options: either the video, either the graphics. Okay, because text are a flat thing, you cannot exactly feel the vibes in text when you see it for the first time. But in a picture, in a graphic, you can feel the vibe, right? Like sign, like the color combination and everything. Okay, so you need to create graphics to create engagement, and the graphics should have a story and message. Story plus message plus harmony, right? It means balance. ये चीजें आपको रिक्वायर करनी है. These are the requirement for graphics. अब मैं आपको एक रफली जो एक आइडिया देता हूँ ग्राफिक्स का, कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या करने वाले हैं. तो सबसे पहली चीज जो हम लोग बनाने वाले हैं वो है एक लोगो, राइट? सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लोगो. वी आर क्रिएटिंग अ लोगो. ओके, लोगो क्रिएट करते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान में देनी है. सो एक एक बार उनको देख लेते हैं. फर्स्ट थिंग, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी. ओके, तो आपको अपना लोगो अपने अकॉर्डिंग चूज करना है. योर लोगो विल कंटेन योर नेम और सिग्नेचर और शेप. ठीक, दैट नीड टू डिसाइड. अंदर आंख बंद करोगे, एक बार खुद से पूछोगे आपको, यू विल गेट द आंसर. ओके, व्हाट आई लाइक द मोस्ट, मुझे नेम ज्यादा अच्छा लगेगा या फिर सिग्नेचर ज्यादा अच्छा लगेगा या फिर शेप ज्यादा अच्छा लगेगा. ओके, देन the color, what kind of color you want to use. Few people might to create a website for themselves, maybe for their businesses or what, but most of you would be like me. Okay, you might not have any idea what you want to go ahead with. So what we all are going to do, we are going to create a website, a business, a identity for our own. Okay, we will create a portfolio website for ourselves. Okay, where our main motto will be learning how to create website, learning the aspects of digital marketing, not mastering any particular theme, right? So we are just going to learn that one. So what we will create, we will create logo for ourselves, our name or some other name, but that will be related to digital marketing. Okay, that would be digital Prashant. Okay, right, something like that. For example, I'm telling you. Okay, so these two things that you need to make sure while you're creating a graphics, I mean the logo, the name, the color, these two things are very important. Okay, while you're creating this one, you might require few things after the logo, that is two colors. One color will be white and second will be dark. Okay, तो आपको ये दो कलर रिक्वायर होंगे. These two colors will be required while creating the logo, because some of the graphics might have the darker background, then you will use the white logo. Some might have the lighter background, then you can use the darker one. Okay, so you need to make sure while you're creating the logo, you always have a backup of it. It means download it somewhere so that you can change the color later on, right? So ये सब करेंगे कहाँ, ये सब हम लोग करेंगे कैनवा के अंदर. ओके, तो कैनवा में चलने के पहले मैं एक बार आप लोगों को आइडिया देता हूँ ग्राफिक्स का, फिर हम लोग कैनवा पे चलेंगे. तो आ जाइए, एक बार मैं स्केच पैड में आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके. देखो मेरी ड्राइंग पर मत जाना, क्योंकि मैं स्केच पैड यूज कर रहा हूँ, पेन पैड, डिजिटल पेन पैड, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है. तो ड्राइंग पे मत जाना, बस मेरा आइडिया समझना आप, ठीक है, कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ. So this is screen here.
और इस स्क्रीन में आपका जो लोगो बनेगा वो जैसे ये आपका ग्राफ स्क्रीन है, स्क्रीन में आपने क्या कहा कि सर देखो मुझे अपना ग्राफिक बनाना है, ग्राफिक का साइज आपने ले लिया ऐसा कुछ, ठीक है, दिस इज योर रेक्टेंगल जो कि आपने ले रखा है, ठीक है। अब अगर इस रेक्टेंगल के अंदर आपको ग्राफिक बनाना है अपना, ठीक है, तो इसमें ग्राफिक बनाने के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान देना होगा। पहली चीज, यहां पर हम लोग कहते हैं कि स्पेस जिसको क्या कहा जाता है, मार्जिन। ओके, दिस स्पेस इज नोन एज मार्जिन। ओके, so we need to make sure that we are leaving this space throughout the web content, okay, throughout the graphic। अगर हमारी ये पोस्ट का साइज है, सपोज करते हैं दिस इज योर 1080 बाय 1080 पिक्सल्स, दिस इज योर साइज। ओके, सपोज दिस इज योर साइज। सो व्हाट डू यू वांट, इस 1080 पिक्सल्स में यू विल स्पेयर सम space at the corner। Why? Because it will give you some breathing space, right? So we need to make sure that we are giving this equal margin everywhere, okay, to create the balance। okay, chalo, you have given this one now। अब यहां पर अगर आप लोगो बना रहे होंगे तो इट विल बी सेंट्रल अलाइन, ठीक है, लोगो आपका सेंटर में होगा। ओके, सेंटर में होगा, चाहे उसमें आपका कंटेंट भी हो वो भी आपका सेंटर में होगा, सब कुछ सेंटर में होना चाहिए। और अगर आप ग्राफिक्स बना रहे हैं तो आप एक क्या करोगे, आप एक डिजाइन पैटर्न फॉलो करोगे। अब अगर ग्राफिक्स बना रहे हो तो जैसे उसमें अगर कंटेंट लिखा हुआ है तो कंटेंट लिखा हुआ तो कैसे होगा, आपकी जो हेडिंग होगी वो यहां पर होगी, ठीक है, टेक्स्ट होगा वो भी लेफ्ट अलाइंड होगा, आपके आइकन्स होंगे वो सेंटर अलाइंड होंगे, बट अगेन वो मार्जिन के बीच में होंगे, ठीक है। आपका लोगो होगा तो ये यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा, ठीक है, सो दैट कि पूरी डिजाइन में ना थ्रू आउट एक ही कंसिस्टेंसी रहे। इफ इट इज लेफ्ट अलाइन इट मस्ट बी लेफ्ट अलाइन, इफ इट इज बैलेंस जैसे मैंने कल आपको दिखाया तो इट शैल बी बैलेंस्ड। ओके, तो जब आप ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आप कभी एज टू एज नहीं लिखते, यहां से लेकर यहां तक नहीं लिखेंगे। ओके, आपको कभी भी मल्टीपल फॉन्ट्स यूज नहीं करने हैं, ठीक, मैं आपको नोटिस कर देता हूँ, ये सब चीजें आपको लिख के देता हूँ मैं। Yeah, Tanya, I'll explain that to you। Tanya is asking me about the pixels, what is there। मैं आपको अभी भी समझाऊंगा, when we'll go to the Canva I'll explain you that one। All right, few things that you need to understand। always leave some margin, always leave some margin in the graphics। Okay? Follow the balance, don't more than two fonts in your graphic, don't use more than two colors graphic। It max 3 no graphics, right। और भी जो चीजें होंगी मैं बताता जाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो मैंने आपको ये कुछ चीजें बता दी जो कि आप लोगों को काम आने वाली हैं यहाँ पर। चलो, ओके, मार्जिन हो गया, बैलेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको एक ग्राफिक बनाना है, तो ग्राफिक बनाने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि आप यहाँ पर कोई भी शेप चूज कर सकते हैं, दैट कैन बी एन इमेज, इमेज के नीचे टेक्स्ट हो सकता है, either that could be left aligned or that could be center aligned। अगर center aligned है तो सब कुछ center aligned होगा आपका फिर, alright, everything must be center aligned, right, सब कुछ center aligned होगा। अगर आपका लेफ्ट अलाइन हो सब कुछ लेफ्ट अलाइन होगा, ठीक है। फिर आपका पूरा पैटर्न आपका ये फॉलो होना चाहिए, ठीक, कि एवरीथिंग एज। आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि आपको मेन चीज का एम्फेसाइज करनी है, ठीक है। एम्फेसाइज करना मतलब किस चीज को आपको
हाईलाइट करके रखना है, राइट। तो हाईलाइट पोर्शन भी आपको ध्यान देना। अगर आपका ये टेक्स्ट हाईलाइट में आना चाहिए तो आपको ग्राफिक्स कुछ इस तरीके से बनाना है कि आपके जो व्यूअर हैं उनका पूरा ध्यान इस पर ही रहे। देखो मैंने एरो लगा दिए, अब आपका ध्यान इस पे ही रहेगा, ठीक है। आप एरो नहीं लगा सकते, ओके, यू कैन नॉट यूज द एरो। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका कलर थोड़ा डिफरेंट रख सकते हो। कलर थोड़ा डिफरेंट रखने का मतलब क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर यूज किया, सी दिस इज द ब्लैक कलर, तो इस ग्राफिक में ब्लैक के साथ और क्या यूज कर सकता हूँ, ग्रे वन, ओके। ग्रे आई कैन यूज, राइट, व्हाइट आई कैन यूज, ओके। और क्या यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज पिंक विद ब्लैक, नो, आई कैन नॉट। द कलर मस्ट बी इन द कॉम्बिनेशन, कि आसपास के मिलते जुलते कलर ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ख्याल रखना है, और भी धीरे धीरे मैं आपको चीजें बताऊंगा। फिलहाल लेट्स जस्ट स्टार्ट द वर्क। सबसे पहले चीज गाइस ध्यान रखिएगा, हम लोगों को क्या करना होगा, वी नीड टू साइन अप, वी नीड टू साइन अप इन canva.com, ओके। canva.com क्या है, canva.com एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर टेम्पलेट्स भी होती हैं, जिन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके आप प्री एडिटेड जो आपका कंटेंट है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, चाहे आप इमेज चेंज कर दीजिए, कंटेंट चेंज कर दीजिए, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसी में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो canva.com पर हमें साइन अप करना होगा, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स, ओके। तो वी विल गो टू canva.com, विल गो टू canva.com एंड यहाँ पर हमारे पास ये देखिए लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन है। सो ईच वन ऑफ यू विल जस्ट गो टू द साइन अप ऑप्शन एंड यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, ये देखिए साइन अप विद ईमेल, या फिर जीमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं। जैसे आप साइन अप करेंगे आपको एक होम स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है, जहां पर वो आपसे पूछेगा आपको क्या डिजाइन करना है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये देखो टॉप लेफ्ट में आपको होम का बटन दिखाई देगा, तब उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सो वंस यू क्लिक ओवर देयर इट विल, सर एक क्वेश्चन है, या सर साइन अप के बाद ये पूछ रहा है कि आप लोग कैनवा क्यों यूज करना चाहते हैं, ऑप्शंस दिए हाँ हैं, तो लार्ज कंपनी, हाँ पर्सनल। दैट इज टोटली योर आंसर, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, इट्स जस्ट फॉर देयर ओन नॉलेज। ओके सर, फाइन। सो चलिए दैट्स ग्रेट, आपने करना स्टार्ट कर दिया, ओके। तो आपको जैसे साइन अप करना है दोस्त, आपको यहाँ पर कैनवा का ये डैशबोर्ड दिखाई देगा, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, कैनवा का डैशबोर्ड दिखाई देता है। इस डैशबोर्ड में यू सी मल्टीपल तरीके के ऑप्शन दिख रहे हैं आपको ऊपर, डिजाइन एनीथिंग में, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया के ग्राफिक्स, वीडियोस, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग के लिए यानी कि एडवर्टीजमेंट के लिए चीजें, ऑफिस रिलेटेड चीजें, और मोर में आपके पास और तमाम सारे ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए कितने सारे आपके पास ऑप्शन खुल के आते हैं। तो ऑलमोस्ट ए टू जेड सब कुछ आपको मिलता है कैनवा के अंदर डिजाइन करने के लिए। यू वांट टू डिजाइन द कैलेंडर, background, thumbnail for YouTube, social media post for Instagram, story creation for Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn cover picture, Facebook cover picture, anything. Okay, you name सर it, ये you will get the फ्री option. होता है या फिर पेड होता है सर ये? There are both the things. I'll explain you वो paid कब होगा और free कब होगा। अभी फिलहाल it's a free one which you are using. तो यहाँ पर आपको सारी डिजाइन मिल जाती है, okay. Now here is the thing, while you are creating the design in Canva you need to make sure few things that what you are designing, ठीक है। And once you are going to design you don't need to create freshly. It means sometimes what happens, people go and click over this create a design and they come up here like sir मुझे अब custom design कितना size यूज करना है, Facebook के लिए कितना size यूज करूं मैं, LinkedIn के लिए कितना size यूज करूं, Instagram के लिए कितना size यूज करूं। डोंट गेट ट्रैप्ड ऑन दैट वन, ओके। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। एंड स्मार्ट वर्क क्या कहता है, स्मार्ट वर्क कहता है भैया सर्च का ऑप्शन दिया गया है ना, यहाँ पे सर्च कर लो। सो इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट द लोगो इन कैनवा, इट्स प्रीटी सिंपल, सर्च फॉर द लोगो in the search bar, search for the logo and you get this one logo, okay। So it will open up this logo। यहाँ पर आपको more than 1000 around 1666 templates are there for you to design your logo, okay। I'll explain you, just wait a little bit। Just like logo, if you want to design something else like for a Facebook cover, just search for the Facebook cover and you will see this,
Okay, you will get the Facebook cover. What is Facebook cover? You guys might know about this one, right? Okay, on the Facebook page there is a profile, and above the profile you have a cover, a big background. Okay, so that is the cover. Okay, you want to change this LinkedIn cover, banner or cover, you just get that. Okay, this is for LinkedIn. You want YouTube thumbnail. Okay, you get the YouTube thumbnails. What are the thumbnails that we use in this one? Is a YouTube thumbnail that we created in Canva. I showed this to you yesterday, right? And just like this, हम लोगों ने और भी जो बना रखे हैं, those are also the thumbnails that we created on Canva, right? So same you can create it from here. So this search options almost gives you every answer that you want to create. Okay, so now what we are going to start with, the logo. Okay, so I'm going to click over the logo. Now here's a question: what is pixels? Because once you get the logo, it has 500 by 500 pixel size in Canva. Pixels क्या होता है? Pixels आपके फोन का जो साइज होता है ना, उसमें पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, दो ज्यादा पिक्सल्स। 1 इंच में कितने पिक्सल्स हैं, दैट इज द साइज। जैसे कि आपके जो मॉनिटर आप यूज कर रहे हो, जो भी आपका पीसी है या लैपटॉप है, उसका साइज कितना होता है? 1920 बाई 1080। अभी जो पुराने आ रहे थे अब तक, ठीक है, 1920 बाई 1080, दैट्स कॉल्ड एचडी। ये क्या है? पिक्सल्स है, यानी कि इंच में कितने सारे पिक्सल्स है, डॉट्स है, ठीक है, दैट्स वन थिंग। तो हम लोग इसके बिहाफ में ये क्रिएट करते हैं। अगर मैंने बोला 1080 बाई 1080 पिक्सल्स, तो ये क्या है? ये साइज है इंस्टाग्राम की पोस्ट का। कि इंस्टाग्राम में जो पोस्ट बनती है उनका साइज होता है 1080 बाई 1080 पिक्सल, इसका स्क्वायर। ओके, और इस पिक्सल में अगर आप ग्राफिक बनाओगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनेगा। अगर आप 500 बाई 500 पिक्सल्स बनाओगे और उसका साइज की रिक्वायरमेंट 1080 बाई 1080 पिक्सल है, तो क्या होगा? आपके ग्राफिक का साइज छोटा रह जाएगा, तो मे बी कल को वो पिक्सलेट हो सकता है, यानी कि फट सकता है, ब्लर हो सकता है। ओके, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पिक्सल्स। ओके, तो यहां पर जो भी हम ग्राफिक्स बनाते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, दोज आर मेजर्ड बाय पिक्सल्स। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस वन। ठीक है, तो पिक्सल्स काम क्या हुआ? आपको साइज बताना। जब आप साइज क्रिएट करने जाओगे, क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक करोगे, तो इट विल आस्क यू द पिक्सल्स। यहां पर देखो वीडियो कितने पिक्सल्स में होता है? 1920 बाई 1080 px, यानी पिक्सल्स। ओके, ऐसे ही आपका प्रेजेंटेशन, फेसबुक पोस्ट के पिक्सल्स देखो 940 बाई 788 पिक्सल्स। तो ये आपका पिक्सल्स कहलाता है। चलिए, जो भी लोगोज आप यहाँ पे बनाते हैं canva.com पर, वो सारे 500 बाई 500 पिक्सल्स के होते हैं। ओके, now let me explain you how we create graphics in Canva. Okay, I mean the logo in Canva. आपके डाउट्स मैं अभी सबके मैं क्लियर करूंगा, बस आपको सिर्फ मुझको देखना है राइट नाउ। वंस आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, उसके बाद फिर अपने डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं और फिर आप लोग काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें किस तरीके की लोगो डिजाइन अपने लिए अच्छी लग रही है। कल मैंने आपको दो तरीके के फॉन्ट बताए थे, सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। मैं एक बार वापस से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। सैंस सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं? वो फॉन्ट्स होते हैं जिनमें एजेस नहीं होती शार्प, जो राउंड होते हैं, जो स्मूथ होते हैं, वो सारे सैंस सेरिफ होते हैं। और सिर्फ सेरिफ कौन होते हैं? वो फॉन्ट जिनमें एजेस होती हैं, यानी कि जितने भी आप जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इजाबेल मसेडो, ये क्या है आपका? ये आपका सेरिफ फॉन्ट है, क्योंकि इसमें एजेस हैं। यू सी दिस वन, इट लुक्स शार्प टू योर आईज, दीज आर सेरिफ फॉन्ट्स। सेकंड चीज, आपको किस तरीके की चीजें अच्छी लगती हैं? जैसे यहाँ पर अगर आप इजाबेल मसेडो देखोगे, तो यहाँ पर दो तरीके के आपके ग्राफिक्स के पैटर्न है। एक तो सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपका सेरिफ फॉन्ट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, नाम। दूसरा इसमें नीचे सिग्नेचर फॉन्ट में लिखा हुआ है। यू नीड टू फाइंड आउट विच वन यू लाइक द मोस्ट। जैसे यहां पर देखेंगे द स्कैनरी, इसमें आप देखो नीचे क्या लिखा हुआ, ये आपका सिग्नेचर फॉन्ट है, राइट? व्हाट यू लाइक द मोस्ट। आपको ये फॉन्ट पसंद आ रहे हैं ग्राफिक्स के, जिसमें आपने थोड़ा सा एलिमेंट्स यूज किए, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे जहां मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने एलिमेंट्स यूज किया, नीचे आपका सिग्नेचर पड़ा हुआ है। ओके, एंड तो दैट काइंड ऑफ स्टफ यू लाइक। आपको इस तरीके के अच्छे लग रहे हैं या ये अच्छा लग रहा है आपको, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ 1000+ आइडियाज पड़े हुए हैं। यू नीड टू चेक विच वन यू कैन रेजोनेट विद। आपको किसको देख करके एक वाइब आ रही है, यस आई लाइक दिस वन। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट दिस वन, ठीक है। जैसे पॉपएक्सो को देखो, आपका इस तरीके से दिखता है। ओके, आपके लिए हर एक ऑलमोस्ट आपकी जो प्लेटफॉर्म है उसका आपको लोगो मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा और स्मार्ट सर्च करनी है, तो आप क्या करोगे?
आप यहाँ पे सर्च कर लोगे रेस्टोरेंट लोगो, ओके, लेट्स सी दैट क्या आता है। यस इट वर्क, सी रेस्टोरेंट के हिसाब से क्या लोगो चल सकते हैं, इट हैज शोन यू एवरीथिंग सिंगल थिंग। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, जैसे भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इज इट फ्री और पेड, तो यस इट हैज बोथ द ऑप्शंस। दिस सेक्शन यू सी इट्स फ्री, but right below that it's paid. Okay, so Canva has both the things. It is helping what in multiple ways. So maybe I'm just if I'm not wrong, 80% things that you really want from Canva is free. 20% if you really want to exceed with some other imaginations of yours, then you need to pay to Canva. But don't worry about it. Whatever I'm going to cover might not require any paid element, so you can create all of this for free. Okay, so I'm here, I'm going to create a logo for yourself so that you can just take an idea and get some hints about it, how you're going to create it. Okay, so I have searched about the logo and I'm going to find a logo. Okay, before going that, let me find my style, right? Mini style kya, what I like the most. So I like softness, right? Smooth edges and something, so that's why I'm going to show you this one here. So I use both kind of stuff, right? So you see this picture, it has this logo of mine, P and C included. Okay, so this is something a stamp kind of stuff that included the signature, right? So this is that gives me one thing. Okay, not only this one, I have used some other way of logos as well. So let me show you this one. आप कैसे find out करोगे? How would you just recognize कि what is your one? Okay, this one आप देखो बहुत लाइट सा यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है इंडियन फोनोग्राफर. ओके, दिस इज वन मोर थिंग बट आई डिडंट लाइक इट मच. आई थॉट लाइक इट्स नॉट जस्ट डूइंग थिंग्स प्रॉपर्ली. यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से शार्प एजेस वाला यूज किया है. इवन दिस इज नॉट लुकिंग स्मूदर टू माय आईज, राइट? तो इस तरीके से मैंने हजारों तरीके के जो है अपने सिग्नेचर ट्राई कर लिए. फिर देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट आई लव द मोस्ट. सो यहाँ पर देखिए मैंने सिग्नेचर टाइप का एक और यूज किया था, प्रशांत चौहान, दिस वन. Okay, but after using all of this I finally recognized that I love only one kind of, see यहाँ भी आपका signature. So I tried a lot about it, like what suits much better to me. तो मैंने इनका combination बनाया. So this is the combination of it. Okay, जहाँ पे signature भी है plus stamp भी है और it is looking proper, it's not looking abrupt. So you need to find out and it will definitely take time for you to create such things. Okay, so don't worry, just believe in yourself, you can create it, give it time. You might need 4 to 5 days to finally get the proper logo done. Okay, but यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे काम किया जाएगा, हाउ वुड यू वर्क ऑन दैट. तो मान लेके चलते हैं कि आप सब लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू गोना वर्क अपॉन अ लोगो व्हिच हैज ब्लू, ग्रीन और ग्रे कलर. तो लेट मी शो यू दिस वन. लेट मी शो यू दिस वन. आप लोगों ने अपने नाम आई होप तैयार करके रखे होंगे. This is good one. Strategy branding. Okay, this is a really good one. एक मैंने ये चूज कर लिया है. I like this one also. कभी कभी जो बहुत छोटे से प्यारे से होते हैं ना, सी जनरल हॉस्पिटल का, यू सी दिस वन, हाउ ब्यूटीफुल इट इज. आप लोग को बस ये समझना है कि देखो जो प्लेन चीज होती है ना, जहां पे ज्यादा भरा नहीं होता ना, उसकी अलग ही स्मूथनेस होती है, वो अलग ही ब्यूटी होती है उसमें. तो कोशिश करना ना बहुत क्लीन सा लोगो बनाना, दोस्त ज्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं है उसमें. ठीक है, बैकग्राउंड हमें प्लेन लेकर चलना है. मैंने काट दिया. ओके, लेट मी फाइंड सम अदर एज वेल. ठीक है ठीक है ठीक है, और देखते हैं. मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देखते रहो, अपने दिमाग में आप भरते जाइएगा कौन सा आपको अच्छा लग रहा है. आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं हैशटैग के साथ जो ये लगा हुआ है. दिस इज गुड, दिस इज फॉर ट्रैवल, दैट्स रियली गुड. ओके, दिस इज आल्सो वेरी गुड, दिस वन एंड दिस वन. बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे हैं.
और देखते हैं कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं। जितने ज्यादा सिंपल उतने ज्यादा खूबसूरत। होम फर्निशिंग का दिस इज अ ब्यूटीफुल वन। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। See how cool it is. I mean, like you can change the color of this one, and it's good. It's really good. If you can change the color now, it will be beautiful. Okay, so just make it the darker one. How good it is. So this is kind of stuff you can change it anytime. Okay, so you can change it. आप यहाँ बना सकते हैं अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं. Don't worry about the background. We are going to remove the background anyway. Okay, तो चलिए अब मैंने जो चूज किया उसमें से कोई एक ले लेते हैं. So I have choose. तो चलिए मान लीजिए कि वी लाइक दिस वन. इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर पहले इस पर क्लिक करते हैं. देखो एक एक एलिमेंट को देख लेते हैं. यहाँ पर ये क्या है, दिस इज एन एलिमेंट. ओके, ये इन्होंने एक एलिमेंट यूज किया है यहाँ पर. इन्होंने यहाँ पर एक एलिमेंट यूज किया है. अब इस एलिमेंट को यूज करके पहले इसको देखो, आपको जो रेड लाइन दिख रही है ना, इसको ऐसे रखना है आपको. सेंटर लाइन कर दो. देखो दोनों तरफ रेड रेड से क्रॉस हो गया, प्लस बन गया. इट मींस ये सेंटर अलाइंड है. तो आपको इस अलाइनमेंट का ध्यान रखना है. ठीक है. दूसरा, अब यहाँ पे आपको अपना नाम चेंज करना था. सिंपली डबल क्लिक कीजिए. डबल क्लिक करने के बाद आपको जो भी यहाँ पर नाम लिखना है. ओके, जैसे डिजिटल डॉट, डिजिटल स्क्वायर. Okay, suppose this is my name. I want to use this one. Okay, so what I will do, I'll just simply write down the name digital square. Okay, this is here. Now you need to check this thing कि क्या भैया स्मॉल लेटर में अच्छा लग रहा है, कैपिटल में अच्छा लग रहा है. तो यहाँ पर डिजिटल स्क्वायर, तो जो आपने ये लिखा हुआ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. क्यों? क्योंकि ये भर रहा है, तो ये भरता हुआ अच्छा लग रहा है. तो you need to figure out this thing कि which one is looking much better. Okay, now you wanna change this one. अब इसमें जो कलर्स आ रहे हैं, कलर को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है ना वो हम लोग व्हाइट में करने वाले हैं. बैकग्राउंड व्हाइट में क्यों करने वाले हैं उसका भी एक रीजन जो भी मैं बताऊंगा आपको. ओके, डिजिटल स्क्वायर, दिस इज गुड वन. थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा करेंगे अभी. फॉन्ट बड़ा करने के लिए पूरा सिलेक्ट किया आपने. ये देखिए ऊपर आपको फॉन्ट का सेक्शन दिख रहा है. जस्ट सिंपली क्लिक ओवर द फॉन्ट एंड इसको आपको बराबर लेकर के आना है कि बराबर 41.39.6. ओके, दिस इज फाइन. ओके, इट्स सिमिलर. आपका ये हो गया, ये आपका बन गया. अब मैंने इसको व्हाइट में क्यों किया, दिस इज द रीजन. अब जब आप इसको कहीं यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली नहीं चाहते कि ये प्रॉपर्ली रेक्टेंगल में आए. ओके, आपका अगर कोई ग्राफिक्स आप लोगे यहाँ पर, सो डू रियली वांट दैट कि आपका ग्राफिक में जो लोगो है वो रेक्टेंगल में लग के आए यहाँ पर. इट विल लुक सो ऑड. ओके, इट विल लुक सो ऑड टू योर आईज. ओके, कि भैया अच्छा नहीं लगेगा. आपको कैसा चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा जिसमें आपका लोगो क्या हो, बिना बैकग्राउंड के आए, सिर्फ लोगो आए, उसका बैकग्राउंड साथ में ना आए. फॉर एग्जाम्पल हियर यू सी दिस वन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगो आ रहा है, उसका बैकग्राउंड नहीं आ रहा व्हाइट कलर का स्क्वायर. हालांकि है स्क्वायर में, अगर आप देखो इसको तो ये स्क्वायर में है, बट इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया है. एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. You need to make sure that your logo is in plain background because you got to remove this background. Okay, so what will you do to remove the background? This is the next step that you need to understand. आपने जैसे मान लीजिए अपना ये लोगो बना लिया है. इस लोगो में क्या क्या चीजों का ध्यान देना, जो मैंने आपसे बोला था, बैलेंस. इट मींस इट मस्ट बी इन दी बैलेंस. तो देखो, ये ध्यान से देखो, ये रहा मेरा बैलेंस. हो गया बैलेंस. ठीक है, मेरा आ गया, उसने रेड कलर आ गया प्लस, तो परफेक्ट हो गया. दूसरा, यहां से देखो सेम मार्जिन है चारों तरफ, यहां से भी ऊपर नीचे, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है.
तो मार्जिन आपका सिमिलर हो गया, आपका लोगो बीचों बीच आ गया। ठीक है, ये अगर ये मैं इस तरह बना दूं, इसको ध्यान से देखना आप, ये तो भाई साहब पता क्या हुआ, कल को जब आप इसको रिमूव करोगे ना, तो जहां जहां आप डालोगे उसमें कटना शुरू हो जाएगा, और इट वोंट इवन लुक गुड कि आपने पूरा स्पेस यूज कर लिया। क्या अच्छा लग रहा है? ये नहीं लग रहा। अभी यही देखो, वापस से मैं इसको करता हूं तो स्मूथ कितना अच्छा लगेगा। सी दिस वन, प्रॉपर्ली स्पेस मिल रहा है, आंखों को स्पेस चाहिए। तो आपको क्या देना है ध्यान, कि आपके पास जो भी आप ग्राफिक बना रहे हो, इट हैज सम स्पेस, सम मार्जिन, राइट। बहुत क्लीन सा होना चाहिए आपका ग्राफिक्स। तो मान लीजिए हम लोगों ने डिजिटल स्क्वायर बना लिया है, एंड वी नाउ वांट टू डाउनलोड दिस एंड वांट टू यूज इन अवर ग्राफिक। ओके, तो मान लो ये हमारा ग्राफिक है, और इस ग्राफिक में मुझको इसको यूज करना है, तो हाउ वुड आई डू दैट? आई विल डाउनलोड दिस वन। ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आपको राइट साइड में ऊपर दिख रहा है, एंड यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक डाउनलोड। तो आपका जो ये लोगो है ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपका लोगो डाउनलोड हो जाएगा, ये आपका लोगो डाउनलोड हो गया। नाउ इफ आई अपलोड दिस राइट नाउ, this logo would have this white background as well, so I'm not gonna use this one like this. Okay, I need to make it transparent. Only the main part of the logo must be visible, not everything. Okay, and how would you do that? There's a software for that. To remove background of your graphic, use remove.bg. That's a website that you must use. Okay, so I'm going to use remove.bg. Opened up, ये देखो इस तरीके से खुलेगी। खुलने के बाद you need to drag your logo here and drop it. There's a one way you can drag and drop, or you can just click over upload image and just go to downloads wherever it is. So here your logo, just click open. सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे आप, आपका जो है पीएनजी डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका हेल्प बिजनेस वाला पोस्ट, यहाँ पे हमको अपना लोगो डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड्स का सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपनी पिक्चर्स, वीडियोस और ऑडियो अपलोड कर सकते हो, और उनको बाद में आप यूज कर सकते हो। तो इट विल बी लाइक अपलोड सेक्शन हियर इन कैनवा, so you can drag and drop it here, and again if it is not working, go to upload device and downloads, recently downloaded, ये रहा आपका, and open. ये देखो व्हाइट बैकग्राउंड चला गया आपका इसमें से, शोइंग यू वही हो जाए अपलोड। बस होते इसको क्लिक करोगे आप, ये आपका यहाँ आ गया। कैन यू सी दिस वन? लेट मी जस्ट रिमूव द earlier one. So you can just reduce it by using these icons. Simple. Okay, digital square, it's good to go. Now you download this graphic and you can use it anywhere. Okay, you can use this logo on any picture, whatever picture you are creating using, you can just use this one. So what we did, we created a beautiful graphic on Canva, a logo, we changed its colors, and then we made it transparent using remove.bg. We downloaded that and we uploaded this in the upload section of Canva, and we can use it in any graphic that you really want, because you need to have a transparent logo, not a logo with a square or the circle in it, right? So you can change it. Now it's totally your call that how creative you want to become. The much you practice here, the more you will learn here. Okay, ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बता दी। ठीक है, अब थोड़ा सा कैनवा के बारे में भी जान लेते हैं। इससे पहले आप ये काम करना स्टार्ट करो, मैं आपको थोड़ा सा कैनवा के बारे में बता देता हूँ। क्या है कैनवा? तो कैनवा में जैसे कि मैंने आपको बताया, there are so many designs that you can work upon, okay, for any field. But apart from that, there are some other functions of Canva as well. Okay, if you really want to create a graphic in Canva, how can you do that? So suppose I want to create a social media post for Facebook post. Suppose this one, Facebook post. I'll click over here. Once I'll click over here, it will show me some formats. Okay, see, these are paid ones. मुझे कोई free का चाहिए. I need something for free. Okay, so let me just find out one for free. The post that we can create. अपने लाइक काम करते हैं, Instagram post निकालते हैं, because I love Instagram more than any other platform.
So let's search for Instagram post. Okay, यहाँ पे काफी सारे हैं. Now how good it is. This is beautiful post. कई सारी एनिमेशन पोस्ट हैं आपके पास, तो if you want to create such things you can. Oh, I like this one. You learn more from losing than winning. Okay, this is a good one. Suppose I want to create this kind of graphic. कुछ चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ. यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज करके ग्राफिक्स बनाया जाता है. ठीक है, अब मल्टीपल एलिमेंट्स क्या होते हैं जरा एक बार ध्यान से देखिएगा इसको. ये तो आपको टेक्स्ट दिख रहा है. ये टेक्स्ट अगर आपको चेंज करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? डबल क्लिक. You will go to this top left section where it's written Cooper. Have it. अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे और whatever font you want to choose, you can choose. Right? Every single font has their details. All those font which has crown on the right section are the paid ones. So you're not gonna use these ones, right? You need to choose something which has nothing mentioned. Okay, just like this one, this one, this one, and there are so many other that you can go ahead with. Okay. So I'm not going to change the font because it is most likely to be the suited font for this graphic. Okay, but you can change the content. To change the content, what you need to do? You need to double click. It will get all selected and you can change, right? Learn graphics designing with Prashant using Canva. Okay, this is what I'm going to use. Using Canva. ठीक है, तो मैं फिर प्रशांत को यहाँ हटा देता हूँ using Canva और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं प्रशांत चौहान. राइट, दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड हियर. अब इसमें जरा ध्यान से देखना कि आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये दिस इज अ कोड. दे हैव यूज्ड इट. ये कहीं से लेकर के आए, कहाँ से आया? अगर आपको ये यूज करना तो आप कैसे यूज करोगे? फॉर दैट वी कॉल इट एलिमेंट्स. वी कॉल इट एलिमेंट्स. कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पर देखिए अपलोड्स नीचे फोटोज का सेक्शन है, उसके नीचे एलिमेंट्स का सेक्शन है. तो चूंकि पहले फोटोज आ गया तो मैं आपको फोटोज ही दिखा देता हूँ. तो फोटोज पे जाते हैं. इफ यू वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ पिक्चर इन योर ग्राफिक यू कैन यूज इट. सो यू गेट सिंपली गो हियर एंड सर्च अबाउट एनी पिक्चर यू वांट. फोटोज पे क्लिक करके एनी पिक्चर यू वांट यू विल गेट दोस पिक्चर्स हियर. और इसमें जो ट्रेंडिंग में चल रही है यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम एज अ पिक्चर. Okay, you can click any picture and you can just make it to the background, right? Suppose I want this picture to be here in my graphic, so I'll click it and it will be here. See, अब मैं इसको ड्रैग करूंगा और ये देखो आइकन दिख रहा है. मैं इसको ड्रैग करके और बड़ा करूंगा और ये देखो मेरे ग्राफिक में आ गया. See, I changed the entire graphic. How cool it is. Okay, now इसमें ये देखो आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है? These are the elements. Alright, these are the elements. So you can also use these elements. ये आपको elements के सेक्शन में आएगा. ठीक है, बट मैं पहले पिक्चर की बात कर रहा हूँ. मान लो इन केस यू वांट दिस पिक्चर टू बी ऑन द अप साइड, तो आप क्या करोगे? ये पिक्चर जो है आपकी, इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और वेट, राइट क्लिक पर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है. यहाँ पे आपका पोजीशन का सेक्शन आएगा. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. कोई नहीं, यहाँ पर अगर नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है? आपको राइट क्लिक करना है. इसको अगर आप पीछे भेज दो पहले, ब्रिंग, ये भी बैक नहीं जा रहा यार, क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ पे ना हर चीज को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने का ऑप्शन आता है आपके पास. इट इज नॉट गेटिंग दैट वन. आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ग्राफिक्स. जो इस तरीके से बनाया गया है, आई थिंक इट इज लॉक्ड. अच्छा, मैजिक रिकमेंडेशंस में ना जो भी चीज आपने यूज किया उसकी रिकमेंडेशन आती है. जैसे ये जो आपने ये यूज किया हुआ है ना, देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो बी हियर. अगर आपको इसका कलर चेंज करना है यू कैन डू चेंज आल्सो. ठीक है, सो यू कैन चेंज थिंग्स. सो ये आपको मैजिक रिकमेंडेशन आ रहा है इसके हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने ये पेपर यूज किया हुआ था. दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग हियर. इस ग्राफिक में ये जो आपको लिखा है लर्न ग्राफिक्स, अगर आपको इसमें इफेक्ट्स डालने हैं तो व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट दिस ऑल एंड जस्ट गो टू द इफेक्ट सेक्शन. आपको ऊपर इफेक्ट्स दिख रहा है टेक्स्ट में, and here is neon. So if you want to use neon you can do that. जो भी आपको कलर यहाँ पे रखना, देखो neon की तरह चमकने लग गई. See, shining properly shining. You want to change the colors, click over the A and choose the color that you really want.
Okay, pink, blue, whatever color you really want, you can just go and choose that. Okay, so we definitely don't want any other, just this one. Okay, ये देखो क्या हो गया, ये आपका जो ग्राफिक है ना, it started glowing like neon. So this is what effects all about. So you can go to the effects ऊपर, and then you can choose glitches, neon. यहाँ पे देखो glitches आपको दिखने लगी on the corners. So that's what you got here. So there are multiple things that you can do. आपको इनके बीच का space आपको बढ़ाना है, तो you can just go this one option, letter spacing. You can increase that. See, it has increased. Line spacing you can increase. Okay, so I made it like this one. Okay, that's totally your call, like how creative you are, कितना ज्यादा आप इसमें ट्राई आउट करना चाहते हो, कितना ज्यादा आप इसको देखना चाहते हो कि कैसे अच्छा लग रहा है, राइट में अच्छा लग रहा है, लेफ्ट में अच्छा लग रहा है, लाइन सेंटर में लाइन अच्छा लग रहा है. इट्स यू हु आर गोइंग टू चूज दिस थिंग, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा. ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्स की. तो जैसे कि ये एलिमेंट्स है, ऐसे आप मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर सकते हो यहाँ पर. ओके, अभी आपने कौन सा है मैजिक रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप देखो तो ये वाला एलिमेंट यूज हुआ है. यू कैन यूज मल्टीपल एलिमेंट्स इन दिस वन, राइट? जस्ट क्लिक कोड. ओके, तो यहाँ पर आपका क्लिक करते ही यहाँ पर कोड आ गया. सी, यू वांट टू मेक इट ट्रांसपेरेंसी, तो सी आप उसको हल्का लाइट कर दो. ओके, तो यू कैन यूज इट. सी दिस वन हियर. Okay, it will just give it some extra uh, good benefit to you. Okay, तो यहाँ पर आप कंटेंट चेंज कर दो इसका, आप इसको लर्न कर दो. ठीक है, इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास. एलिमेंट्स में देखो आपको शेप्स अगर आपको डालने हैं तो देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ शेप्स दैट यू कैन यूज हियर इन Canva. Okay, if you remember yesterday I have used my picture in between this one. If you really want to use a picture, how do you do that? So for that, एक तो देखो शेप का ऑप्शन है, शेप पे क्लिक करोगे तो आपका सर्कल आ गया. ओके, सो यू वांट टू यूज योर लोगो एंड यू डोंट फाइंड इट लाइक कि आपका लोगो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि ऑरेंज कलर और रेड के साथ अच्छा नहीं लगेगा. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज योर लोगो हियर विद द सर्कल. एंड हाउ वुड दैट हैपन, तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और आई विल यूज इट हियर इन बिटवीन. सेंटर लाइन हो गया और छोटा कर देते हैं. Okay, I've used this one here. Now I can use my logo. So I'll go to the upload section and I'll click digital square. It's over here. इसको छोटा करते हैं, इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे. ओके, यू कैन यूज इट लाइक दिस वन. ठीक है, आपने किस तरीके से यूज कर लिया. ठीक है, दूसरा अगर आपको ये नहीं करना तो आप बड़ा कर सकते हैं इसमें. यहाँ पे जैसे मैंने लोगो यूज कर लिया, अगर मुझे यहाँ पे अपनी पिक्चर यूज करनी है तो व्हाट विल आई डू, आई जस्ट डिलीट इट. आई डिलीट दिस शेप आल्सो. व्हाट विल आई डू, आई गो टू एलिमेंट्स एंड शेप्स के नीचे फ्रेम्स आ रहा है आपका. देखो मैं जैसे ही फ्रेम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक सर्कल का फ्रेम आ जाएगा जहां पर मैं अपनी पिक्चर लगा सकता हूँ. ओके, दैट्स अ फ्रेम वेयर आई कैन यूज माय पिक्चर. सी, नाउ आई वांट टू यूज माय पिक्चर हियर. तो कैसे करूंगा, मैं अपलोड्स में जाऊंगा, मैंने जो अपनी पिक्चर डाल रखी होगी, आई कैन अपलोड दैट पिक्चर हियर. तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इट इज हियर. अब इसको ड्रैग करके और इस शेप के ऊपर छोड़ दो आप. हो गया, डबल क्लिक करो, ये बड़ी हो गई. इसको और एडजस्ट करो, थोड़ा सा और बड़ा करो. ये सारा प्रैक्टिस पर आएगा आप लोगों को. ठीक है, यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस, तो आप ये सब कुछ सीख जाओगे. सी, इट्स हियर. तो इसी ग्राफिक्स के हमने मल्टीपल चेंजेस कर दिए. ऐसे आपके एलिमेंट्स है, ऐसे आपका टेक्स्ट का सेक्शन है कि अगर आपको टेक्स्ट यूज करना है अपने ग्राफिक में, यू हैव मल्टीपल टेक्स्ट हियर. सी, इस तरीके का टेक्स्ट यूज करना है, फ्री डिलीवरी, वर्कआउट, ग्लो, एनीथिंग दैट यू रियली वांट. यहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेक्स्ट आर हियर. व्हाटएवर टेक्स्ट यू रियली वांट टू यूज, यू कैन यूज. आपने बस क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे इट विल बी हियर. सी, इट्स हियर. मैंने 2 बार क्लिक कर दिया. चलिए, ठीक है, इट्स हियर. Okay, so you can use these texts simply.
बट इन सब में आपको चीजों का क्या ध्यान देना, देखो पहले ये कंटेंट आप देखो, ये कंटेंट ना बॉक्स आप देख लो, रेड कलर का बॉक्स आ गया, यानी कि मैंने मार्जिन का ध्यान रखा है। ओके, दूसरी चीज मैंने बैलेंस का ध्यान देखा, सब कुछ लेफ्ट अलाइंड है, ठीक, द पिक्चर एंड एवरीथिंग इज लेफ्ट अलाइंड। ओके, आपको अगर सर ये कैसे आएगा, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा आपको, ठीक है, दिस इज समथिंग। आप जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि साइड में मार्जिन छुपा हुआ है, सेंट्रल लाइन क्या है, तो यू विल गेट ऑल दीज डिटेल्स। बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपको इन चीजों को फॉलो करना है और इसके बिहाफ में आपको अपने ग्राफिक्स बनाने हैं, ठीक है। So for example, I can just share this with you on the group so that you can get an idea like how to do it. और क्या क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, और भी तमाम चीजें हैं, जैसे बैकग्राउंड हो गया, वीडियोस हो गया। इफ यू वांट टू यूज द वीडियोस यू कैन क्लिक ओवर द वीडियोस, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ पेड दोनों तरीके के वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियोस एडिट करने हैं तो आप सिंपली क्लिक करोगे और आपके में वीडियो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो इट विल बी लाइक हियर, तो मैं इसको ऊपर डाल देता हूँ। ओके, तो मेरे ही ग्राफिक में यहाँ पे आई कैन जस्ट reduce the font of this one. Okay, so it will be like this. ऐसे चलेगा। तो जो भी आपको यहाँ पर डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हो, कोई भी वीडियो यहाँ पर डाल सकते हो और उसका नीचे कंटेंट लिख देना है आपको, तो इट विल बी लाइक दिस वन, ठीक है। तो आपका ये प्रॉपर्ली इस तरीके से चलेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करोगे किसमें, MP4 वीडियो में, तो आपका इस तरीके से दिखाई देगा ये। इट इज कूल। ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट आप लोग को इस पूरे प्लेटफॉर्म का आइडिया लग चुका होगा अब तक। और वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, टेक्स्ट, एलिमेंट्स, फोटोज, तमाम चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे डाल सकते हो, तमाम टेम्पलेट्स हैं, आपको इनका इस्तेमाल करना होगा और इनका इस्तेमाल करके आप ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। अब आपको मैं सेम चीज कहूंगा कि आपको अगर एक अच्छा लोगो क्रिएट करना है तो आप लोगों को एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एलिमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैंने उस वीडियो में आप लोग को डाल कर दिया हुआ है, जो कि यूट्यूब में मैंने आपके साथ शेयर किया है दिस वीडियो। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है। जैसे डिजिटल बर्ड मुझे क्रिएट करनी थी, तो आई हैव टेकन द बर्ड फ्रॉम इंटरनेट, और इंटरनेट से मैंने उसको यूज किया, डाउनलोड किया, रिमूव किया, फिर लोगो पे डाला, फिर मैंने लोगो बनाया, ठीक है। तो इट्स अ ट्रिक दैट यू कैन यूज, जिसको आप लोग यहाँ से सीख सकते हो। जो सिंपल और बिल्कुल स्ट्रेट वे है वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। आपके पास दोनों तरीके हैं। इस वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। अब जो हमारा आगे काम है वो सिर्फ प्रैक्टिस का काम है। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू क्रिएट अ लोगो फॉर योर सेल्फ।